Welcome to AcademyHub. In this second episode of Simply Explained, we will be trying to analyze and understand the recent hue and cry over the draft regulations proposed in Lakshadweep. Lakshadweep एक यूनियन टेरिटरी है विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी टू एंड यह एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो अरबिक ओशन में सिचुएटेड है नियर बाई टू केरला। तो हम समझेंगे कि लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं इसके रिगार्ड में, एंड लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की प्लेयर्स हैं। अलॉन्ग विद दैट हम जानेंगे इन सारे कंट्रोवर्शियल कम डेवलपमेंटल रेगुलेशंस के बारे में और यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये ड्राफ्ट कितना प्रोग्रेसिव और कितना ड्रैकोनियन है। बट बिफोर वी बिगिन रूबरू होते हैं इस पूरे विवाद से इस रिपोर्ट के जरिए। Lakshadweep is the smallest union territory of India with an area of 32 km square. It consists of group of 35 islands of which only 10 are inhabited, scattered in the Arabic Ocean within a distance range of 200 km to 400 km from Kerala. Its population is 70,000 and majority is Muslims. The region came into British control after Third Anglo-Mysore War in 1787. Post-independence, it used to be a part of Malabar district till it was categorized as Union Territory by the reorganization of Indian state move in 1956. However, it gained its present shape and name Lakshadweep in 1973. In December 2020, Praful Patel was appointed as the administrator of the region and has brought several controversial and set developmental regulations which has created mayhem in the Union Territory. Lakshadweep Anti-Social Activities Regulation, a preventive detention law, is already in execution, which is providing too wide power to arrest in the name of prevention. 3 draft regulations are facing the procedure of enactment. The draft of Lakshadweep Development Authority regulation has become the center of controversy as it proposes to acquire land of localites by the government in quite arbitrary fashion. On the other side, the draft Lakshadweep Animal Preservation Regulation is to ban the beef in the region despite Muslim-dominated demography. Nevertheless, the draft Panchayat regulation, which disqualify persons with more than 2 kids to be a Panchayat member, is also being contended by the localites. Presently, there exist 10 divisions, 1 district and 1 Lok Sabha constituency in the Union Territory. पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन टेरिटरीज को डील करता है एंड आर्टिकल 239 प्रोवाइड्स दैट एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ सर्टेन यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी के केस में जहां लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 इज कॉल्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर। वाइल लक्षद्वीप में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट को यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर ही बोला जाता है। कन्वेंशनली ब्यूरोक्रेट्स आर प्रोवाइडेड विद दिस जॉब बट दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल पटेल who is an ex-minister in Gujarat government and political leader of Bharatiya Janata Party was provided with this job. Further, Article 240 के according, the President may make regulations for the peace, progress and good government of the Union Territory of Lakshadweep. इसी पावर का यूज कर अभी जो भी विवादित मसौदा है उसे तैयार किया गया है। टू नोट, जो भी इनैक्टमेंट्स यानी कानून बनते हैं लक्षद्वीप में वे रेगुलेशंस होते हैं और उन्हें एक्ट नहीं कहते, अनलाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी के केस में जैसा होता है, क्योंकि दिल्ली एंड पुडुचेरी के केस में जो लॉज हैं वो विधानसभा से यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होके आते हैं, वाइल लक्षद्वीप के केस में ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनएक्ट होके आता है। नाउ अगर हम इस प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय रेगुलेशन को समझें, देन फर्स्ट स्टेप ड्राफ्ट रेगुलेशन प्रिपरेशन का होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किया जाता है। देन द ड्राफ्ट रेगुलेशन इज पुट इन पब्लिक डोमेन फॉर कमेंट्स एंड सजेशंस। हाल में जो भी कंट्रोवर्शियल ड्राफ्ट्स हैं इन्हें अप्रैल 28 को पब्लिक डोमेन में रखा गया था एंड मई 19 तक सजेशंस प्रोवाइड करने थे। आफ्टर दिस प्रोसेस फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है जिसे केंद्र सरकार में होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया जाता है
होम मिनिस्ट्री ड्राफ्ट रेगुलेशन को अप्रूव करती है, कैबिनेट को फॉरवर्ड करती है, कैबिनेट अपना एसेंट प्रोवाइड करती है एंड देन प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करती है। प्रेसिडेंट एसेंट मिलते ही ड्राफ्ट रेगुलेशन लॉ बन जाता है। नाउ सबसे ज़्यादा हाय तौबा जो मचा है वो लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस को लेके मचा है। और मसला जब भी ज़मीन का होता है तो विवाद होना लाजमी है। इस ड्राफ्ट रेगुलेशन का ऑब्जेक्टिव टाउनशिप डेवलपमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताया जा रहा है, जिससे कि मालदीव के तर्ज पे लक्षद्वीप को भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सके। बताते चलें कि अभी के हाल में लक्षद्वीप टूर के लिए प्रायर परमिट लेना होता है एंड ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी भी डेवलप्ड नहीं है। कारणवश पोटेंशियल होने के बावजूद यह कुछ खास टूरिज्म अट्रैक्ट नहीं करता। नाउ लक्षद्वीप का टोटल लैंड सरफेस एरिया 36 किलोमीटर स्क्वायर है और डेवलपमेंटल एंड टाउनशिप प्लानिंग के लिए लैंड एक्विजिशन की ज़रूरत है। ड्राफ्ट LDAR के सेक्शन 5 में गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज प्लानिंग एरिया। यहाँ गवर्नमेंट का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। वंस एन एरिया इज डिफाइंड एज प्लानिंग एरिया, then section 7 के अकॉर्डिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज ऑल्सो कॉल्ड PDA इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। PDA ही पैरामाउंट एग्जीक्यूटिंग बॉडी है संपूर्ण डेवलपमेंटल प्लान का एंड इट्स फंक्शन इज टू फ्रेम डेवलपमेंटल प्लान्स एंड टाउन प्लानिंग स्कीम्स, एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेसिडेंट्स फॉर द पर्पज एंड इम्प्लीमेंट इट एट द एंड। PDA ड्राफ्ट डेवलपमेंटल प्लान को लोकल न्यूज़पेपर एंड नोटिफिकेशन के जरिए पब्लिक डोमेन में पुट करेगी एंड एक कमिटी भी बनाएगी जहां लोग अपने ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस रजिस्टर कर पाएंगे। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस को कंसीडर कर फाइनल प्लान विल बी ड्राफ्टेड एंड विल बी फॉरवर्डेड टू द गवर्नमेंट। आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ द डेवलपमेंटल प्लान जो भी प्लानिंग एरिया होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूजेज। बताते चलें कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी एरिया पब्लिक यूजेज के लिए लेबल होता है देन इट कैन बी एक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज। फर्दर सेक्शन 62 के अकॉर्डिंग प्लॉट एक्वायर कर PDA कैन अलॉट इट टू एनी पर्सन ऑफ हिज चॉइस, मीन्स लैंड विल बी टेकन फ्रॉम द लोकलाइट्स and will be allotted to the corporates, and obviously then only infrastructure development is possible. Nevertheless, the PDA is empowered to determine the compensation payable to the people whose original plots is being acquired. मतलब हरजाना भी अपने मन का देना। नाउ सेकेंड कंट्रोवर्शियल ड्राफ्ट है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021। द्वीप की 93 to 94% पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं एंड 95 to 96% पॉपुलेशन इज कैटेगराइज्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। नाउ करेंट ड्राफ्ट रेगुलेशंस के सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग नो पर्सन शैल स्लॉटर एनी एनिमल विदाउट दिस सर्टिफिकेट इन राइटिंग फ्रॉम द अथॉरिटी। मायने कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु की हत्या नहीं कर सकता जब तक ऐसा करने का परमिशन ना हो। एंड इसी सेक्शन के क्लॉज 2 में काऊ, काफ, बुल एंड बलक के केस में कोई स्लॉटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है, मीनिंग दैट काऊ, काफ, बुल एंड बलक कैनॉट बी स्लॉटर्ड एट ऑल। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग स्लॉटरिंग सर्टिफिकेट के लिए अ पेमेंट ऑफ फी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। फर्दर सेक्शन 8 प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेलिंग और बाइंग ऑफ बीफ और बीफ प्रोडक्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 7 में इन केस इफ़ यू आर ट्रांसपोर्टिंग काउ, काफ, बुल और बलक देन यू नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड अगर परमिशन नहीं लिया जाता देन ट्रांसपोर्टेशन विल बी टर्म्ड एज फॉर द पर्पज ऑफ स्लॉटरिंग एंड इन दिस पर्टिकुलर केस owners have proved that transportation was done for the agricultural purpose and not for slaughtering is on the accused। मतलब accused को ही प्रूव करना पड़ेगा जो व्यक्ति ट्रांसपोर्ट कर रहा है काऊ, काफ और बुल और बलक को विदाउट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, देन ही हैज़ टू प्रूव दैट such transportation was meant for the agriculture purpose and not for slaughtering। Further, section 11 के अकॉर्डिंग all offences under this regulation will be cognizable and non-bailable। Now इस रेगुलेशन का नाम तो एनिमल प्रिवेंशन है बट बैक डोर से ये बीफ बैन के लिए बनाया गया हो ऐसा जान पड़ता है।
नाउ डेवलपमेंट तक तो बात ठीक है, बट सरकार अगर लोगों के थाली के व्यंजन को निर्धारित करने लगे फिर सरकार किम जॉन बन जाती है। फर्दर काउ प्रोटेक्शन एंड बीफ से रिलेटेड इशूज़ के लीगलिटी को जानने हेतु आप राइट टॉप कॉर्नर में डले लिंक का उपयोग कर सकते हैं। नाउ थर्ड कंट्रोवर्शियल पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन को लेकर, जो कि जनवरी में ही नोटिफाइड हो चुका है एंड लॉ भी बन चुका है। प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, अलाइक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड यूएपीए। इस रेगुलेशन के सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटर में if satisfied with respect to any person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the maintenance of public order, it is necessary to do so, make an order directing that the person should be detained. मीनिंग दैट अगर एडमिनिस्ट्रेटर को लगता है कि कोई व्यक्ति मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है तो उसे डिटेन किया जा सकता है। ध्यान रहे यहाँ पब्लिक ऑर्डर कीवर्ड है एंड सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के डिस्टर्बेंस के लिए ये डिटेंशन पॉसिबल नहीं है। हाउएवर सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग विद इन 7 days ऑफ द डिटेंशन द डिटेनी हैज़ अ राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ हिज अरेस्ट। बताते चलें कि ये प्रिवेंटिव रेगुलेशन लक्षद्वीप के लिए कुछ नया नहीं है एंड कर्नाटक, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ऐसे लॉज एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें गुंडा एक्ट भी कहा जाता है। लास्ट ड्राफ्ट रेगुलेशन है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021। दिस ड्राफ्ट स्पेसिफाइज रूल्स फॉर गेटिंग इलेक्टेड टू ग्राम पंचायत। सेक्शन 14 में इट इज प्रोवाइडेड दैट दोज विथ मोर देन 2 children are disqualified from getting elected to the gram panchayat, but it is not applicable retrospectively, meaning that if I have 3 children right now then also I am qualified until इस ड्राफ्ट के नोटिफाई होने के बाद the number doesn't increase to 4 from 3। इस प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्लियरली पॉपुलेशन कंट्रोल है एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लक्षद्वीप इज 2149 people per kilometer square, while national average population density of India is 382 people per kilometer square. Similar legislations are already elected in Rajasthan, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Uttarakhand and Karnataka. Furthermore, women empowerment की मंशा से 50% of the seats in panchayat bodies are reserved for the women. However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. यह ख्याति प्राप्त शब्द बाबा साहब अम्बेडकर के हैं। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसके मायने यह है कि चाहे कानून कितना भी सुशोभित हो वो विकास को सुनिश्चित नहीं करता। डेवलपमेंट के नाम पर आर्बिट्ररी एंड अनलिमिटेड पावर अथॉरिटीज़ के हाथों में प्रोवाइड किया गया है और एनिमल प्रिवेंशन के नाम पर बीफ बैन किया जा रहा है। होल इंडियन लीगल सिस्टम में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो एब्सोल्यूट बीफ बैन की बात करता हो। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड एडजेसेंट केरला में जहां मास पॉपुलेशन नॉन हिंदूज हैं ऐसी रेस्ट्रिक्शंस बीफ पे नहीं है। फर्दर डेवलपमेंटल रेगुलेशन के जरिए विकास कितना होगा ये तो वक्त बताएगा, जैसे कि संपूर्ण भारत का विकास वक्त बता रहा है, बट उससे पहले लोकेलाइट्स के लैंड को कॉरपोरेट बॉडीज के हाथों में दिया जाना तय लगता है। जॉन डेलबर्ग ने 19th सेंचुरी में कहा था दैट पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लक्षद्वीप एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन के जरिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए सफिशिएंट वाइड पावर इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द एडमिनिस्ट्रेटर। एज यू कैन सी सम ऑफ द ग्राउंड्स इन द प्रीएम्बल। नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग ओनली 121 क्रिमिनल केसेज वे रजिस्टर्ड इन ईयर 2017 ऑन द आइलैंड्स, while 86 in 2018, 186 in 2019 and 89 in 2020। लिमिटेड क्राइम्स के बावजूद स्ट्रिंजेंट प्रिवेंटिव लॉ एब्सोल्यूट पावर के जरिए अथॉरिटीज को एब्सोल्यूटली करप्ट न कर दे, इस बात का भय ही शायद लक्षद्वीप के लोगों को इन सारे ड्राफ्ट के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए विवश कर रहा है। Thank you for watching this video. Help us to help you by subscribing to AcademyHub.